Hello students, how are you? Welcome back to the video classes after vacations. I hope you all are fine and enjoyed your vacation. Before vacation, I have started a chapter, Organisms and Population. And in that chapter, I have started the topic population, in which we have studied about characteristics of population, population growth, growth models, etc. Now, in this video, I am going to start the topic interaction between the population, or you can say population interactions, means how population of different species interact in the environment. So, let us start the class. So, students, we will study now population interactions, means how population of different species interact with each other in the environment. As you know, in nature, animals, plants and microbes do not and cannot live in isolation. Means ये जो नेचर में एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स हैं, वो कभी भी अकेले नहीं रहते और ना ही रह सकते हैं. Instead, they used to interact in various ways to form a biological community. Means different species population used to interact with each other in an environment to form a biological community. And since two different species are interacting with each other, so this interaction is known as interspecific interaction. Okay, so interspecific interactions are interactions between populations of two different species. Now this interspecific interaction can be of three types. First is beneficial interaction, means either both of the species will be benefited with that interactions, means species A or species B, both will be get benefit, then that interaction, interspecific interaction, is known as beneficial interaction, and this type of interaction is represented by positive sign. Second type of interspecific interaction is harmful or detrimental interspecific interactions, means either one species or both the species will face loss or they will be get negative impact, मीन्स या तो किसी एक स्पीसीज़ को या फिर दोनों ही स्पीसीज़ इस इंटरेक्शन में जो है उन्हें किसी तरह का नुकसान होगा, वो हार्मफुल होगा उनके लिए. तो इस तरह के इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस को कहते हैं हार्मफुल और डेट्रीमेंटल interspecific interaction, and it is represented by negative sign. The third type of interspecific interaction is neutral, means ये जो interspecific interaction है इसमें किसी एक स्पीसीज़ को, जो इंटरैक्ट कर रहे हैं दो स्पीसीज़, उसमें से किसी एक स्पीसीज़ को या तो फ़ायदा होगा या फिर नुकसान, बट जो दूसरा स्पीसीज़ है उस पर किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना ही वो इंटरेक्शन उस दूसरे स्पीसीज़ के लिए बेनिफिशियल होगा और ना ही हार्मफुल. देन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रल इंटरेक्शन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नॉट साइन और ज़ीरो साइन. नाउ अकॉर्डिंगली the type of interaction occurring between the two species, this interspecific interaction can be of three types. First is mutualism. In mutualism, both these species are benefited, means if species A and species B are interacting with each other and their interaction is mutualistic, means they both are providing benefit to each other, then that is called as mutualism, and it is represented by positive sign both for species A and species B. The second type of population interaction is competition. In this, both these species can face loss, means ये जो competition वाली interaction होती है इसमें दोनों ही species जो है उन्हें किसी ना किसी तरह का harm पहुँचता है. तो इस तरह के इंटरैक्शन को हम लोग कहते हैं हार्मफुल या नेगेटिव इंटरैक्शन. इसमें स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी दोनों के ही इंटरैक्शन या दोनों के लिए ही नेगेटिव साइन का जो है
यूज़ करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग दी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। थर्ड टाइप इज प्रेडेशन। तो प्रेडेशन में क्या है, इसमें होता क्या है कि दो स्पीसीज के बीच में जब इंट्रैक्शन होती है, इन दिस ओनली वन स्पीसीज गेट्स बेनिफिट एंड अनदर वन इज हार्म्ड। मीन्स एक को बेनिफिट मिलता है और दूसरा जो है उसके लिए हार्मफुल होता है। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि जो प्रेडेशन है उसमें स्पीसीज, अगर स्पीसीज ए को बेनिफिट मिल रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं वहाँ पे, उसे रिप्रेजेंट करें पॉजिटिव साइन से। और स्पीसीज बी के लिए जिसको लॉस फेस करना पड़ा है, मीन्स जो इसके लिए ये इंट्रैक्शन हार्मफुल है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइन को उसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड इज पैरासिटिज्म। Parasitism is also similar to the predation. In this also one species get benefit and another species face loss. Means ये इंट्रैक्शन एक के लिए बेनिफिशियल होता है और दूसरे के लिए हार्मफुल होता है। फिर आता है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में स्पीसीज ए और स्पीसीज बी को अगर हम देखें तो इसमें होता ये है कि ओनली वन स्पीसीज गेट्स बेनिफिट बट other species neither get benefit or nor they get harmed. मीन्स ना ही उन्हें किसी तरह का बेनिफिट मिलता है, ना ही ये इंट्रैक्शन उनके लिए हार्मफुल होता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज एमेंसलिज्म। तो एमेंसलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज इज हार्म्ड, मीन्स उसे हार्मफुल इफेक्ट फेस करना होता है, बट जो दूसरा स्पीसीज है उसे किसी भी तरह की कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, ना ही कोई हार्म और ना ही कोई बेनिफिट। तो इसमें जो है इंटरेक्शन क्या होता है, इस तरह के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एमेंसलिज्म। ओके, अब इन इंटरेक्शंस को हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज प्रेडेशन। प्रेडेशन क्या है, इट इज एन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज किल्स दी another species. Means अगर दो species रहे, species A and species B. Now if species A is a predator, means अगर वो शिकारी है, and species B is a prey, शिकार जिसे कह सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, species A will kill and consume the species B. For example अगर हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर की जो species है अगर वो predator है और species B suppose it's deer, तो it will be prey. तो tiger, the species A which is a predator, will kill and consume the species B, that is deer, and deer is here prey. Okay, this is predation. तो अब ये देखिए कि predators जो है, what is their role in the environment, क्यों predators का होना ज़रूरी है environment में। predators जो है, the first important role is that they are the connection of energy transfer across the tropic levels. अभी tropic levels क्या है, फूड चेन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो फूड चेन में क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, देन इन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल देर इज हार्बीवोर्स, देन इन थर्ड ट्रॉपिक लेवल देर इज प्राइमरी कार्निवोर्स, देन फर्दर सेकेंडरी कार्निवोर्स, एंड that goes on for at least 4 to 5 tropic levels. तो इस बीच में these predators are a very important part of these tropic levels to continue the flow of energy in this tropic level from producers to top carnivores. Okay, now second, these predators used to control the population of prey. मीन्स ये जो predators होते हैं अपनी जो शिकार हैं उनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया में या फिर एक एनवायरनमेंट में से टाइगर, लायन जो कार्निवोर्स हैं उन्हें हटा दें, तो क्या होगा, जो हार्बीवोर्स हैं उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड दिस इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोर्स विल कॉज दी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, और जब प्लांट्स ख़त्म होंगे तो हर्बीवोर्स भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरी की पूरी जो अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो प्रीडेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ देयर प्रे। थर्ड रोल ऑफ प्रीडेटर इज दैट दे हेल्प टू मेंटेन द
स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। अब ये कहीं भी स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन रखते हैं, ये तो पिछले वाले जो रोल था उसमें भी समझ में आया आपको, बट यहाँ पर क्या होता है कि दे यूज टू मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द प्रे स्पीसीज। जो उसका जो प्रे स्पीसीज है उसके बीच में कंपटीशन को रोक करके भी क्या करते हैं, ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी उसको मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रेडेटर है, एक शिकारी है, वो एनिमल 10 उसके शिकार है, मीन्स 10 प्रे ऐसे एनिमल्स है जिसे वो खा रहा होता है। अगर ये प्रेडेटर वहाँ ना हो तो वो सारे जो 10 प्रे एनिमल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे से फूड रिसोर्सेज और स्पेस के लिए compete करके क्या होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, राइट। तो वहाँ की डाइवर्सिटी को मेंटेन, कहीं भी किसी कम्युनिटी की स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी प्रेडेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल है लाइक एक प्रिकली पियर्स कैक्टस, इसे इंट्रोड्यूस किया गया फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लुक into a place in ऑस्ट्रेलिया। और जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद ये इतनी रैपिडली ग्रो किए, इट कॉज्ड अ हैवॉक, इट स्प्रेडेड सो रैपिडली इनटू द मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंज लैंड। मीन्स ऐसे लैंड में ये इतनी रैपिडली ग्रो हुआ जहाँ पर जो ग्रास लैंड्स थे, श्रब लैंड्स थे, डेजर्ट, जहाँ पर जो दूसरे एनिमल्स थे वो ग्रेज करते थे या फिर दूसरे वाइल्ड एनिमल्स वहाँ रहते थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, वहाँ की दूसरे तरह के जो प्लांट्स थे वो भी वहाँ ग्रो नहीं कर पाए, ना ही वहाँ पर जो उन प्लांट्स पर को खाकर या वहाँ पर उन वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने वाले जो एनिमल्स थे वो वहाँ रह पाए। तो इससे स्पीसीज डाइवर्सिटी वहाँ की डिस्टर्ब हो गई। इसके लिए फिर उसे रोकने के लिए, इस कैक्टस की ग्रोथ को रोकने के लिए क्या किया गया, एक इस कैक्टस को के ऊपर फीड करने वाले प्रीडेटर्स को, इंसेक्ट्स को, मॉथ्स को वहाँ पर उनके नेचुरल हैबिटेट से लाकर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से ये जो मॉथ है उन्होंने कैक्टस को फीड किया और तब जाकर ये कैक्टस की जो है जो ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। और इसके बाद वापस से वहाँ की जो स्पीसीज डाइवर्सिटी थी काफ़ी वक्त बाद मेंटेन हो सकी। सो स्पेसिफिकली द प्रेडेटर्स यूज टू मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। अब देखिए इसका एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने कहा कि कैसे जो एक प्रेडेटर है वो अपने प्रेज स्पीसीज के बीच में कंपटीशन को रोकता है, जिसकी वजह से वो स्पीसीज की डाइवर्सिटी मेंटेन हो सके। तो देखिए कि कैसे कंपटीशन रोक रहा है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट था। ये एक इंटरटाइडल कम्युनिटी अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, वहाँ पर एक स्टार फिश पिसेस्टर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर थी वहाँ की। मीन्स वो वहाँ के बहुत सारे जो एटलीस्ट 10 स्पीसीज थे इनवर्टिब्रेट्स के, जिसके ऊपर दैट स्टार फिश यूज टू फीड ऑन, मीन्स उसे वो फीड कर रही थी, वो उसका खाना थे। तो एक्सपेरिमेंटली जो है ये स्टार फिश को उस रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी में से निकाल लिया गया, वहाँ से उसे हटा दिया गया और हटाकर कहीं और डाल दिया गया। उसके बाद जब 1 साल बाद जब स्टडी किया गया वहाँ पर उस एरिया को, तो आफ्टर दैट इट वाज फाउंड दैट द 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स विच वेर द प्रे ऑफ दैट स्टार फिश बिकेम एक्सटिंक्ट। वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए, अब वो वहाँ पे थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। वो जो 10 स्पीसीज थे इनवर्टिब्रेट्स के, उनका जो फूड और जो उनका स्पेस था वो कॉमन था। अब क्योंकि उनका पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होने लगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दैट प्रीडेटर स्टारफिश, they started competing with each other, और at the result of that competition the population of that 10 species of invertebrates became extinct. In this way, this shows that predators are very important
to reduce the competition between the prey species. The another type of interrelationship is also present between predator and prey. Sometimes if predator is too efficient and used to over exploit its prey, means अगर predator बहुत ज़्यादा efficient हो और अपने prey को वो over exploit करे और बहुत rapidly उसे feed on कर जाए, तो that prey may also get extinct due to this over exploitation by the predator. And following this, since that prey will become extinct and the predator will not get the food in the scarcity of food, that predator will also die. So it is very important that the balance between predator and prey should be maintained. अब देखिए कुछ adaptations which is being developed by the prey in escape predators से बचने के लिए जो prey है, मीन्स शिकारी से बचने के लिए जो एनिमल्स हैं, उन्होंने अलग तरह के एडेप्टेशंस डेवलप की. तो कुछ बहुत ही अच्छे एडेप्टेशंस के एग्जाम्पल हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज कुछ ऐसे स्पीसीज हैं, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स are cryptically colored, means they used to show camouflage means they used to change their color according to their surrounding environment to avoid being detected easily by the predator. जैसे वो जिस तरह के environment में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रॉग और लीव्स के बीच में है, तो कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं फ्रॉग्स के जो अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं लीव्स के कलर के अकॉर्डिंगली. इसकी वजह से होता ये है कि जो प्रेडेटर है, जो शिकार है, वो उन्हें आसानी से देख नहीं पाता. तो ये जो कैमोफ्लेज है या जो ये प्रोसेस है क्रिप्टिकली कलर्ड होने की, ये एक तरह का एडेप्टेशन है प्रे के अंदर टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर. सेकेंड एग्जाम्पल इज मोनार्क बटरफ्लाई. इट इज़ रियली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बर्ड्स जो हैं इन मोनार्क बटरफ्लाइज को आसानी से इनका शिकार कर सकते हैं, पर वो नहीं करते क्योंकि ये मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर एक स्पेशल तरह का केमिकल रिलीज़ होता है. इनकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल होता है जो कि उन बर्ड्स के लिए बहुत ही बुरा टेस्ट का होता है, बहुत ही डिस्टेस्टफुल होता है. और इसकी वजह से जो है बर्ड्स जो हैं इन मोनार्क बटरफ्लाइज को कभी भी इनका शिकार नहीं करते. तो ये एक तरह का एडेप्टेशन है मोनार्क बटरफ्लाई में अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए. अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में है एडेप्टेशन, जैसे प्रेजेंस ऑफ थॉर्न्स. कांटे देखे होंगे आपने कुछ प्लांट स्पीसीज में, जैसे अकाशिया, कैक्टस. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें थॉर्न्स हो, स्पाइंस हो, herbivores do not use to attack them, do not use to eat them, because if they will try then they will get injured. Then this is a adaptation of plants to escape from their predator. Another adaptation in plant is storage of toxic chemicals. Like एक कैलोट्रोपिस का जो प्लांट होता है उसमें एक बहुत ही पॉइजनस केमिकल प्रेजेंट होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ध्यान दें इस पर कि कैलोट्रोपिस जो है उस प्लांट्स में एक बहुत ही हाईली पॉइजनस केमिकल होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड. और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड जब किसी एनिमल्स के अंदर जाता है, अगर इफ़ अ हर्बीवोर विल ईट or feed on these calotropis, then this chemical will result into the cardiac arrest of that. Means उसकी जो हार्ट है उसकी वो क्या होगी, वो रुक जाएगी वर्क करना. तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है हर्बीवोर्स को. इस वजह से हर्बीवोर्स जो हैं कैलोट्रोपिस के प्लांट्स को दे डू नॉट यूज टू फीड ऑन देम. इसके अलावा और भी केमिकल्स होते हैं जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनाइन, ओपीएम एक्सेट्रा. दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस प्लांट्स एंड these chemicals are harmful for herbivores. Next type of interaction is parasitism. Now this interaction is a type of interaction where one of the species is called parasite and it depends on the other species and that species is called host. Means ये जो
एक स्पीसीज़ वो पैरासाइट होते हैं और ये दूसरे स्पीसीज़ पे डिपेंड करते हैं फूड और शेल्टर के लिए, मीन्स घर, रहने के लिए और खाने के लिए, तो उन स्पीसीज़ को कहते हैं हम होस्ट, राइट। तो अब मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स जो होते हैं दे यूज टू हार्म द होस्ट, वो हार्मफुल ही होते हैं अपने होस्ट के लिए। ये पैरासाइट्स या तो अपने होस्ट की सर्वाइवल या फिर उनके ग्रोथ या उनके रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। कई बार तो ये पैरासाइट्स जो होते हैं जिस भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस भी होस्ट के ऊपर या अंदर ये रहते हैं, दे मेक देम दैट होस्ट वेरी मच वल्नरेबल फॉर प्रिडेशन, मीन्स बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं उन अपने होस्ट को, जिससे कोई भी प्रेडेटर आसानी से उसके होस्ट का शिकार कर लेता है। सो पैरासिटिज्म जो है वो कंप्लीटली नेगेटिव इंटरैक्शन आप कह सकते हैं। मीन्स एक जो पैरासाइट है जो वो अपने होस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। देखिए कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं उसमें किस तरह का एडेप्टेशन होता है ताकि वो अपने होस्ट से आसानी से न्यूट्रिशन ले भी सकें और उसे यूज़ कर सकें विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैट न्यूट्रिशन। So adaptation in parasites according to host. The first adaptation in parasites is no sensory organs, no sense organs. They do not have any sense organs like nose, eyes, ear for smelling, listening or tasting. They don't have any type of sense organs. So and due to which they used to conserve their energy. Second, they have specific adhesive organs or suckers so that they easily cling to the host, means they get attached to the host very easily, and for that they have a specific type of structures like adhesive organs or suckers. Third adaptation is they do not have any digestive system because they don't need that, as they used to absorb all the digested food from their host, all the digestive nutrients. And the fourth adaptation is they have very much high reproductive capacity. They used to reproduce very efficiently and divide very efficiently. Okay, these are the adaptations in parasites according to host. Next is life cycle of parasite. These parasites either required one or two intermediate host, means या तो इन्हें कोई एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है अपने मेन होस्ट तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन लिवर फ्लूक, जो ये फ्लूक होते हैं ह्यूमंस के लिवर को इफ़ेक्ट करने के लिए, दे हैव टू इंटरमीडिएट होस्ट बिफोर द ह्यूमन लिवर फ्लूक। ह्यूमन के लिवर तक पहुंचने के पहले ये दो और ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाते हैं, मीन्स दो और होस्ट इनके होते हैं। एक होता है स्नेल और दूसरी होती है फिश। तो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन्हें स्नेल, फिश और ह्यूमन लिवर, ये तीनों होस्ट की तरह चाहिए होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। ये जो पैरासाइट है दे रिक्वायर टू होस्ट। वन इज़ मॉस्किटो, जो वेक्टर की तरह काम करते हैं इन्हें ह्यूमंस तक पहुंचाने के लिए, मीन्स इसके दूसरे होस्ट तक पहुंचाने के लिए। एंड दिस पैरासाइट रिक्वायर्स बोथ मॉस्किटो एंड ह्यूमंस टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड इंडोपैरासाइट्स। एक्टो मीन्स बाहर, इंडो मीन्स अंदर। तो एक्टोपैरासाइट्स आर द पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जनरली ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी भी होस्ट, अपने होस्ट के बाहर होते हैं। दे डोंट गेट इनसाइड द होस्ट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल लाइस ऑन ह्यूमन, जो हेयर्स में लाइस लग जाते हैं वो, टिक
ऑन डॉग्स, एक इंसेक्ट्स होते हैं टिक, जो कि डॉग्स की बॉडी पे जो है वो स्टिक हो जाते हैं, ये उनके ऊपर होते हैं, कभी भी डॉग्स के अंदर बॉडी में नहीं जाते। कैस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है जो खुद ग्रो नहीं कर सकता बिकॉज उसके स्टेम्स जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। व्हेन इट गेट सपोर्ट ऑफ एनी ऑफ द होस्ट प्लांट, इट यूज टू grow on that host plant and absorb all the nutrition from that host plant and causes the death of that host plant. तो ये तो एक्टोपैरासाइट्स थे जो कि बॉडी के बाहर हो। एक एग्जाम्पल लीच भी है, लीच जो कि बॉडी के सरफेस के ऊपर होता है एंड दे यूज टू सक द ब्लड from the body but it remains outside the body, so it's also a ectoparasite. Second type is endoparasite means these parasites are a type of parasite that live inside the host body at different sites, जैसे कि liver, kidney, lungs, red blood cells के अंदर ये present होते हैं। For example, tapeworm is a parasite or endoparasite of which lives inside the human intestine, ये human intestine के अंदर होता है। या फिर liver fluke which is present inside the human liver, plasmodium which used to infect the liver and red blood cells of humans, मीन्स ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, इंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाकर उन्हें इफेक्ट करते हैं, राइट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लाइफ साइकिल होती है इंडोपैरासाइट्स की, वो अगर कंपेयर करें एक्टोपैरासाइट से, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स because these endoparasites are more specialized, so their life cycle is comparatively more complex than ectoparasite. Next type of parasitism is brood parasitism. It is very important. Brood parasitism क्या है? This brood parasitism is observed in birds. इसमें होता ये है कि one of the bird acts as parasitic bird and the another bird acts as होस्ट बर्ड। दिस द पैरासाइटिक बर्ड, वो बर्ड जो पैरासाइट्स की तरह जो वर्क कर रहे होते हैं, दे यूज टू ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट बर्ड। मीन्स वो जो पैरासाइटिक बर्ड है अपने एग्स को अपने जो होस्ट बर्ड है उनके नेस्ट में जो है दे यूज टू ले देयर एग, ताकि जो होस्ट बर्ड है वो इनके एग्स को इंक्यूबेट करें और उनके अंदर जो भी डेवलपमेंट होना है एग्स के अंदर वो हो सके। और ये जो पैरासिटिक एग्स हैं, इस तरह से इनके अंदर इनके एग्स जो है वो इवॉल्व हुए होते हैं कि देयर एग्स यूज टू रिजेंबल द होस्ट बर्ड एग साइज एंड कलर बोथ, एंड इतना ज़्यादा रिजेंबलेंस होता है कि जो होस्ट बर्ड है दे डोंट यूज टू ईजली detect that any foreign egg is present inside their nest. Best example है cuckoo and crow, means कोयल और कौवा। तो कोयल जो है, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, they don't use to prepare their nest. Cuckoo always lay their eggs in the nest of crow, and that crow doesn't recognize the foreign egg because the egg of cuckoo is very much similar in the size and color to the egg of crow, and that crow only recognize it at the time of hatching of the egg, not before that. So that egg of cuckoo is easily incubated by the crow. So this is the brood parasitism. So that's all for this video. In next video further I will discuss about the another types of population interactions, that is competition, commensalism and mutualism. Till then, take care of yourself, stay safe, stay home, use mask, use sanitizer and don't forget to maintain social distancing. Have a nice day.